Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm gonna tell you bubble sort in this video. Sorting क्या होती है जब भी हमें एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में प्लेस करना होता है तो हम उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। तो जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई तरह की सॉर्टिंग अवेलेबल होती हैं, जैसे बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। इस वीडियो में हम लोग बबल सॉर्ट के बारे में सीखने वाले हैं। व्हाई डज इट कॉल बबल सॉर्ट? क्योंकि इसमें जो एडजेसेंट एलिमेंट से स्वैपिंग होती है, इट्स लुक्स लाइक अ बबल स्वैपिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी दिखाया है, हाउ डज बबल सॉर्ट वर्क। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं, ये कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करती है बबल सॉर्ट। लेट मी स्विच टू द वाइट बोर्ड। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे हम लोग we have 5 elements. Suppose we need to sort this array. As we know, array start with the 0th index, right? तो 0th एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होता है। इफ 0th एलिमेंट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट, इट विल स्वैप द वैल्यू। बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 4 इज लेस देन 9, देन इट विल नॉट स्वैप। Okay, so the array will remain same after the first iteration. So it will become 4 9 2 8 7. In the second iteration, your first index element will be compared with the next one with the adjacent element. In this case, the element is greater than the adjacent element. It will swap the value and array will become like this: 4 2 9 8 7. Right, now the second index element will be compared with their adjacent value. इस केस में भी हमारा 9 जो है बड़ा है 8 से, देन इट विल स्वैप द वैल्यू। लेट्स राइट इट डाउन: 4 2 8 9 7. Okay, now the third index value will compare with the fourth index, and again it will swap because 9 is greater than 7. Okay, so it will be 4 2 8 7 and 9. So you can see here we get the largest element of the, or the biggest element of the array at the end of the array. So that is your first iteration. That is your first iteration, okay, of the आउटर लूप। ओके, अभी हमारे पास एक पोजीशन फिक्स हो चुकी है 9। अभी हमें सिर्फ 4 2 8 7 पे काम करना है। 4 2 8 7. नाउ 4 इज ऑन 0th पोजीशन, इट विल कंपेयर विद द एडजेसेंट एलिमेंट एंड डेफिनेटली इट्स गोना स्वैप, क्योंकि 4 जो है हमारा 2 से बड़ा होता है। सो 2 4 8 7. Right, now 4 is going to compare with adjacent value 8. It's not going to swap because 8 is already greater. So the next iteration would be 4 2 8 7. Now 8 second index element will be compared with the adjacent element and it will swap the value because 8 is larger than 7, 8 is greater than 7, 4 2 7 8. So at the and you get the largest one at the end, right? Okay, 9 is already there, but we are not considering it because it finalized its position. Okay, 9 is already there, but we are not using that element. Okay, now in the third iteration, like that was the second iteration, and you get the 8 second iteration. Right, now you only have 3 elements to sort: 4 2 and 7. Right, 4 2 and 7. So we will again compare the 0th element with the first index element. So that will swap the value 2 4 7. Now 4 will compare with 7, but it's not gonna swap because 7 is already on the right position. Okay,
So you get the largest one here, and we also have 8 and 9 here. Okay, but we are not going to compare them क्योंकि उनका पोजीशन हो चुका है फिक्स. So that was your third iteration. Okay, now you only have 2 elements to process, so it's not going to swap because 4 is at right position, right? So the largest element we get 4, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या है 7, 8 and 9. So at the end we have only one element, तो उसमें कुछ भी हमारा कंपेयर नहीं होगा, तो हमारा फाइनली जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो चुका है. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे एलिमेंट्स को एडजेसेंट वैल्यूज से कंपेयर करते हैं, राइट? और अगर वो एलिमेंट जो बड़ा होता है तो हम उसे स्वैप कर देते हैं. सो दैट इज़ द लॉजिक ऑफ बबल सॉर्ट. ओके, इसको हम लोग कैसे प्रोग्राम में करेंगे वो देखते हैं जल्दी से यहाँ पे. तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, क्लास नेम. सपोज हमने यहाँ पर रख दिया बबल. ओके, यहाँ पे बबल 1 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वॉइड मेन एरे. मेन मेथड हमारा है विच इज़ एन एंट्री पॉइंट. तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, an array which we want to sort. So the size of the array, okay, so we are going to put some elements in the array 2. okay, सबसे पहले हम लोग इस एरे को प्रिंट कर लेते हैं. बिफोर सॉर्ट ये एरे कैसा लगेगा उसको देख लेते हैं. तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं बिफोर सॉर्ट. ओके, नाउ अभी हमें यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है. सबसे पहले हम इसे प्रिंट कर लेते हैं एक बार. i is less than a of length, i plus plus. a of length is length of the array. array का जो length है that is 5 because we inputted 5 elements here. So we are going to print it first. print एक स्पेस दे देते हैं और a of i. ओके, तो इसको अगर हम लोग bubble1.java से सेव कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ प्रोग्राम सेव है और कंपाइल करते हैं bubble1.java प्रोग्राम को, और जावा bubble1 हमने यहाँ पे रन कर दिया. सो दैट इज़ द एरे एट द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल वैल्यूज़. अभी हमें इसको सॉर्ट करना है, तो हमें लॉजिक लगाना होगा i = 0. लेंथ, यहाँ पे हमने एरे का लेंथ ले लिया, हमें एरे की लेंथ तक ये काम जो है करना है. i प्लस प्लस. ओके, तो हमें इटरेशन बार बार करनी है. फर्स्ट इटरेशन में हमें लास्ट एलिमेंट मिलेगा, तो हम लोग एक एरे और ले लेते हैं. तो हमारा जो एरे है, आप अगर इस प्रोग्राम में देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट टाइम जो है सारे एलिमेंट्स को कंसीडर किया गया था, 5 एलिमेंट को. लेकिन सेकंड इटरेशन में हम लोगों ने 9 को कंसीडर नहीं किया था. इसी तरह थर्ड इटरेशन में हम लोगों ने 8 और 9 को कंसीडर नहीं किया था. यानी हमें एक एक एलिमेंट कम करते जाना है हर इटरेशन में, राइट? तो i = 0, j = 0, j इज लेस देन एरे की लेंथ, ओके, माइनस i, ओके, एंड -1 मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे जब हमारा एरे में कंपेयर होता है तो ये जो A3 वाला एलिमेंट है वो A4 से कंपेयर होता है, बट A4 वाला एलिमेंट आगे कंपेयर नहीं होगा. तो अगर हम A3 तक जाते हैं और आगे वाले से कंपेयर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसी एलिमेंट तक हम जो है लूप चलाएंगे. ओके, क्योंकि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ. इसको थोड़ा सा पोजीशन ठीक कर लेते हैं. इफ a of j is greater than a of j plus 1, राइट? तो अगर यहाँ पे अगर हमारा लूप A4 तक जाएगा तो वो A5 से कंपेयर करने की कोशिश करेगा, जो कि गलत है. आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन हमारा जनरेट हो जाएगा. इसीलिए मैंने इसे -1 कर दिया
कि ए ऑफ 3 से ए ऑफ 4 तक ये कंपेयर करेगा, बट ए ऑफ 4 से ए ऑफ 5 कंपेयर नहीं करेगा। तो इस केस में जैसे कि फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, A0 A1 से कंपेयर होगा, A1 A2 से A2 से कंपेयर होगा, A2 A3 से, A3 A4 से, बट A4 A5 से कंपेयर नहीं होना चाहिए क्योंकि A5 नहीं है। तो यहाँ पे हम एक टेम्परेरी वेरिएबल भी ले लेते हैं स्वैपिंग लॉजिक के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, temp इक्वल टू A ऑफ J इक्वल टू A ऑफ J प्लस 1 एंड A ऑफ J प्लस 1 इक्वल टू temp, राइट। तो ये हमने स्वैपिंग लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दिया है। A0 को A1 से कंपेयर कर रहे हैं, अगर बड़ा होता है तो स्वैप कर देते हैं, देन A1 को A2 से, A2 को A3 से, और इस तरह हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाता है। इन द सेकेंड इटरेशन ऑफ द आउटर लूप हमारा क्या होगा, जो हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट है वो हमारा कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग 9 को यूज़ अब नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट इटरेशन के बाद 9 जो है सॉर्ट हो गया, अगर इस एरे का एग्जांपल लें। ओके, तो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर हम इस एरे को प्रिंट करें तो i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे का लेंथ माइनस i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक स्पेस देते हैं a ऑफ i, एक मैसेज दे देते हैं ताकि आउटपुट थोड़ा मीनिंगफुल आए, आफ्टर सॉर्ट। ओके, कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। एरर नहीं है तो आप देख सकते हो हमारा एरे जो है सॉर्ट हो गया। ऑब्वियसली आपके पास ओरिजिनल एरे और फाइनल एरे आ रहा है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम में देखा था, इस लॉजिक में हमारे पास इंटरमीडिएट रिजल्ट भी हैं। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन यू विल गेट 9 and after second iteration you will get second largest and the largest element at the end of the array. Okay, at the third iteration you will get the 3 largest element at the very right of the array. Okay, अगर आपको intermediate result भी देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लूप के अंदर एरे को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हमने दे दिया println array at position i दे देते हैं यहाँ पे प्लस i प्लस 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि 0 इंडेक्स होगी तो वहाँ 1 आएगा और 1 इंडेक्स होगी तो 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लूप को प्रिंट कर लेते हैं, k इक्वल टू 0, k इज लेस देन एरे का लेंथ k प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ k, राइट। k इज द इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी प्रिंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट में आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट इटरेशन के बाद 9 सॉर्ट हो गया, सेकेंड इटरेशन में 9 और 7 सॉर्ट हो गया, थर्ड इटरेशन में 4 7 9, फोर्थ इटरेशन में 2 4 7 9, और फाइनल जो इटरेशन है वो हमारा आफ्टर सॉर्ट जो है कंप्लीट हो गया। ओके, सो दैट्स हाउ बबल सॉर्ट वर्क। ओके, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।